All right. So we discussed the truth table. Once you know the truth table, you can make characteristics table, because what we want is we want to know the our next state depending on the present state. If you know the present state value of S and value of R, you can find the next state, and depending on the characteristics table, you can make excitation table, right? Now the next guy is called D flip flop, right? What is the difference between D flip flop? ये explain किया था कि नहीं किया था? No, sir. D flip, okay, SR flip flop तक हमने किया था. So if you observe the SR flip flop, right? See the truth table of SR flip flop. This is the truth table of SR flip flop, right? ये सबको अब पता है. SR flip flop का truth table everybody is now knowing, right? When clock is 0 and clock is 1, when clock is 0, no, doesn't matter whatever the value of S and R, you get the next state as present state only. When clock is 1 and SR have different values, you get corresponding output. This is the truth table of SR flip flop. Now you observe one thing. When clock is 0 in the first case, and when clock is the 1 in the second case, you get the memory, and the last case is not valid. Now what I want is, you see the two remaining cases, when S is 0 and R is 1, you get the next state as 0 and next state is 1, and S and R both are complement to each other, right? What we are discussing is the case when S is 0, R is 1, and if S is 1, R is 0. So what I can make another improvement in SR flip flop is that I can just take one input from user, just take one input from user and complement it, right? अगर ये आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो डी फ्लिप फ्लॉप का, so rather than having two value of S and R, we just have one value, one input. This D stand for data, and this D is going to the one end of NAND gate, and the complement of the same is given as an input to the second NAND gate, right? Clock is given to the both of this NAND gate, right? You see, ये SR flip flop, D flip flop का circuit diagram same है. The only difference is the input. Rather than providing S and R two as a different input, only one input is given, is D, right? D input is given, and the same complement form of D is given to the another input. The only difference here is, right? This is the schematic symbol. Rather than having two different input as R and clock, we have only one D, the clock, you have Q and Q bar. Okay, so if you make a truth table of the same, right, you have clock is equal to 0. When whatever the value of D, you will get next state as present state. Clock is 1, D is 0, your output is 0. Clock is 1, D is 1, your output is 1, right? So one observation here is truth table, clock 0, D कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, your next state will be present state. Clock is 1, D is 0, Qn plus 1 is 0. Clock is 1, D is 1, Qn plus 1 is 1. So once you know the truth table, you can make characteristics table. Now the next guy is called excitation table. Hello. हेलो भैया, आवाज आ रही है किसी को मेरी? हाँ हाँ आ गौरव, रही है। तेरी आ रही है। अटक गए। सर का गुड नेटवर्क इश्यू होगा शायद। सेकेंड, कब से हुआ है?
अरे बाबा ओके ठीक है, नाउ आई एम बैक, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके ओके, सो सॉरी, हाँ मैं तो बोलते ही जा रहा था कंटिन्यूअसली और ओके, सो व्हाट वी डिस्कस इज ट्रूथ टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपको समझ सुना ही दिया या मैं पूरा एक्सप्लेन कर गया था? सर वो बाकी है सर, बीच में आपकी वॉइस कट हो रही थी ना, इसलिए वो नहीं होगा। ओके, सो सी दिस अगेन, जैसे इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल बनाया था, राइट? नोइंग द ट्रूथ टेबल यू कैन मेक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल you can make excitation table, right? So characteristics table is nothing but your present state, the input provided by the user to get output. Okay, so same, if you have two possible input as a binary, four possible combination, zero, yes आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? yes, कर ही रहा हूँ मैं। हो नहीं रहा। oh so sorry, oh god। अब हो ये? हाँ सर। यस सर। Okay, so if you observe the characteristics table, matlab knowing the present state and input provided by the user, what output you'll get, that shows by, that is explained by characteristics table. Truth table pata hai, you can make characteristics table as well. If you have two possible combination, sorry, two possible variable, अरे यार ये कौन है, four possible combination is possible, right? 0 0 0 1 1 0 1 1, right? When d is 0, right? When d is 0, your qn plus will be 0. When d is 1, your qn plus 1 will be 1. When q is 0, qn plus 1 will be 0, and when d is 1, qn plus 1 will be 1. From characteristics table, you can visualize one thing. You can see that d and qn plus 1 is same. You can write qn plus 1 is equal to d. So whatever, say 0 1 0 1 0 1 0 1, you can make a statement in characteristics table of a d flip flop. Whatever the input provided by the user will be your next state, right? Now once you know the characteristics table, you can make excitations table. What is excitations table? Whatever is the present state, whatever is the next state, you can find the value of input provided by the user. Similarly, 0 0 0 1 1 0 1 1, no need to remember anything, right? If you know that qn plus 1 is equal to d, right? तो यहाँ पे कुछ भी हो, जो भी qn plus 1 होगा वही d होगा। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 वही लिखना है, एक ही चीज को दोबारा लिखा है। यहाँ पे क्या किया है, qn d qn plus 1 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होता है, qn plus 1 d आपका एक्साइटेशन टेबल होता है। कुछ किया नहीं है, ये कॉलम को यहाँ ले लिया, ये कॉलम को यहाँ ले लिया, बाकी चीज सेम ही है। ओनली इन दिस केस, व्हाई? बिकॉज हियर द रिलेशन ऑफ qn plus 1 is always equal to d. So you can make these three truth table. Now in Viva, I may ask a question of 10 marks, 15 marks, 20 marks, whatever. एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा डिटेल में पूछूंगा। एक्सप्लेन डी फ्लिप फ्लॉप along with its circuit diagram, truth table, characteristics table and excitations table. No need to पूरा डिटेल में कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लैच पता है, ऐसा लैच को नैंड गेट लगा दो, क्लॉक लगा दो, आपका बन जाता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में आप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप को चेंज करो, सिर्फ एक इनपुट दो, उसका कॉम्प्लीमेंट इनपुट में दे दो सेकंड नैंड गेट के, आपका बन जाता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। सर्किट डायग्राम में चेंज ये करना, सिंबल में आपको एस और आर की जगह सिर्फ डी डालना है। वंस यू नो दिस, you can make a truth table. Once you know the truth table से आप characteristics table बना सकते हो, characteristics table से आप excitations table बना सकते हो। सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा, राइट? और एक ही क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा होगा, आपने कर दिया, गेट द फुल मार्क्स। आधा किया, आधा मार्क्स, कुछ नहीं आता है, 0 मार्क्स, राइट? थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, राइट? स्टिल वी विल हैव वन मोर लेक्चर अपकमिंग फ्राइडे, एंड वो इसलिए रखा है कि अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वी कैन फर्दर डिस्कस इट। दैट्स द ओनली रीजन हम लोग ने ये चीज रखी है, ओके? एंड प्रोबेबली फॉर योर होल engineering, I am be teaching you for the last time, so last 2 lectures है हमारे। कुछ भी डाउट हो, जो भी हो, whatever you want to ask, पूछ लेना, right? physics से related, electronics से related, whatever is your query, right? I'm sure now अब आगे से ऐसे कोई फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैं पढ़ाने नहीं आने वाला हूँ, और कोई सब्जेक्ट होगा भी तो ये probably your course
टीचर लाइक कंप्यूटर आईटी के जो फैकल्टी होंगे वही सारे अब लेक्चर्स देंगे. ऑलराइट. So next guy is JK flip flop. I'll just have water. Wait for a second. 1 minute. Okay. Screen share हो रही है ना? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. now you see in SR flip flop and D flip flop, the only combination we were not using is 1 1 1, right? Now JK flip flop is another improvement to D flip flop, that in this case we can again use the 1 1 1 combination in JK flip flop, which we were not using in D flip flop in SR flip flop, right? So this name J and K is the name is based on the founder, the who discovered this flip flop, Jack Kilby, right? JACKKILBY, who is the inventor of this flip flop. So based on his name, this Jack Kilby flip flop, इसका नाम JK flip flop रखा गया है. तो only difference here is कि यहाँ पे देखो ये आउटपुट जो Q है वो यहाँ पे दिया गया है SR लैच में और Q बार यहाँ पे लिया है. उसके साथ सिमिलर ये आउटपुट Q का इनपुट में दिया गया है R के और ये आउटपुट दिया गया है S के. मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे की स्लाइड में. सी जेके फ्लिप फ्लॉप में और एक चेंजेस हुआ है. देखो ये आपका एसआर लैच है, ठीक है. एसआर लैच आप सबको याद है, ये आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड इज इनपुट टू सेकंड नैंड एंड आउटपुट ऑफ सेकंड नैंड इज इनपुट टू फर्स्ट नैंड. यहाँ तक तो था. फिर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप भी याद होगा, उसके आगे गेट लगा दिया, गेट के साथ एक क्लॉक लगा दी, राइट. और एक छोटा सा एडिशन इसमें ये करना है कि ये एस स्टार आर स्टार तो एसआर लैच को सेम ही रखना है. यहाँ पे जो एस और आर था उसकी जगह हमको लिखना है जे और के. क्लॉक तो वैसा का वैसा ही रहेगा एज एन इनपुट, लेकिन एक छोटा सा माइनर चेंजेस फ्लिप फ्लॉप में ये किया गया है कि ये जो आउटपुट था क्यू, उसको वापस से फीडबैक कर दिया इनपुट एज एन इनपुट टू द सेकेंड नैंड, एंड सेकेंड का जो आउटपुट है उसको वापस से फीडबैक कर दिया इनपुट टू द फर्स्ट नैंड, राइट. द ओनली डिफरेंस between SR flip flop and JK flip flop is this configuration. Also the symbol will change compared to the D flip flop. यहाँ पे J भी एज एन इनपुट जा रहा है, K भी एज एन इनपुट जा रहा है, क्लॉक तो हमारा है ही दोनों केस में, राइट. एंड Q बार, तो सिंबल विल चेंज. SR फ्लिप फ्लॉप का सेम सिंबल रहता है, J की जगह S रहता है, K की जगह R रहता है. ओके, डिफरेंस पता चल गया. Yes, sir. ओके ओके. एंड 9th एंड 10th एक्सपेरिमेंट जो है, राइट, जो हमको नहीं करना है, आपको एज एन 9th एक्सपेरिमेंट आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप लिख के सबमिट करना है. थियरी एंड सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल. एंड फॉर 9th एक्सपेरिमेंट आपको जेके फ्लिप फ्लॉप लिखना है. जेके फ्लिप फ्लॉप, उसका सिंबल, उसका सर्किट डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल. एज एन आई विल अपलोड द सेम and you will have to submit it before 2nd of November. So next month you will have 9 days to write SR flip flop and JK flip flop. SR flip flop as an experiment number 9 and JK flip flop as an experiment number 10. थियरी नहीं लिखनी है. देखो मैंने आपको बहुत कम लिखने का दिया है. द ओनली रीजन इज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, राइट. जो भी थियरी मैनुअल में दी है वो लिखने की जरूरत नहीं है. आपको जो चीज मैंने समझाई है वही चीज आपको समझनी है, राइट. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थियरी में लिखो कि अच्छा ये इनपुट जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो लिखना डिफिकल्ट है, लिखने को समझना भी डिफिकल्ट है, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है. अगर आई ओनली वॉन्ट, सी वी डोंट हैव एनी थियरी एग्जाम for this subject. My purpose here in your Viva is I only want you to explain me the basic fundamental theory, fundamental of any question I ask you. अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई K-map,
आपको के मैप का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी जो भी चीज इसमें फ्लिप फ्लॉप है या जो भी चीज है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन मी इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। अगर आपसे नहीं भी हो रहा है, के मैप की बात करो या बुलियन एक्सप्रेशन की बात हो, मैं ऐसे नहीं पूछूंगी चलो पोस्टुलेट लिख के दे दो सारे के सारे, थियरम सारे के सारे, एसोसिएटिव लॉ से लेके सारे वो सब लिख के, नो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होंगे। इफ आई गिव यू कि समेशन स्मॉल एम, ब्रैकेट में लिख दिया 2 3 5 7 9 10, उसके ऊपर से मुझे उसका बुलियन एक्सप्रेशन के मैप और एक नैंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सर्किट बना के दो, वो आनी चाहिए आपको। आपको सिंपली बोलूं जेके फ्लिप फ्लॉप बताओ, जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल क्या हो रहा है, ट्रूथ टेबल नहीं भी बना रहे हो तो आप बताओ कि सही ऐसे यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, चलेगा, ठीक है। ओके, अब ये चीज दिखाई दे रही है आप सबको, हाँ सर। यस सर। या इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मेरी हैंडराइटिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग में या फिर ये क्या लिखा है, MEMORY लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा पूछ लेना, राइट। ऑलराइट, नाउ डिस्कसिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। देखो जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप में व्हेन क्लॉक इज जीरो हमें पता है मेमोरी है, राइट, उसे हम डिस्कस नहीं करें। व्हेन क्लॉक इज वन, जे इज वन, के इज जीरो, और क्यू विल बी वन, क्यू बार इज जीरो, सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप का सेम ही आएगा। What I want to discuss is when the k is 4, when clock is 1, j is 1 and k is 1, the same thing which we were not using in SR flip flop and D flip flop। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे इनपुट में और आप आउटपुट निकालोगे तो आपको क्या आएगा, क्यू भी जीरो आएगा, क्यू बार भी जीरो आता है, राइट। वो पॉसिबल है ही नहीं, कभी कोई भी वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट सेम होता ही नहीं है, जीरो है तो वन होता है, वन है तो जीरो होता है, राइट। और अगर दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये होता था कि आप कोई भी सर्किट हम अज्यूम करना स्टार्ट करते थे तो एक केस में क्यू जीरो आता था, क्यू बार वन आता था, सेम सिचुएशन के लिए क्यू वन भी आता था, क्यू बार जीरो आता था, वो प्रैक्टिकली फिर वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो वी वर नॉट यूजिंग दोस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो व्हेन वी गेट ये अगर हम ले रहे हैं एज एन इनपुट, राइट, देखो j इज वन, क्लॉक इज वन, के इज वन, तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, j वन है, ये वन है, तो ये तो दोनों नैंड में वन वन जा ही रहा है, यहाँ पे भी k और क्लॉक वन वन जा ही रहा है। हमें ओनली डिस्कस क्या करना है, ये तीसरी चीज जो जा रही है वो, राइट। अब ये हमें पता नहीं है, राइट, सो वी विल अज्यूम अ सिचुएशन, लेट्स अज्यूम दैट इन वन केस q इज जीरो एंड q बार इज वन, राइट। ये अज्यूम करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। राइट, क्या हमने अज्यूम किया है, q इज जीरो एंड, चलो q इज जीरो, राइट, तो डेफिनेटली q बार वन ही होगा, कोई भी वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो वन ही, तो q इज जीरो, सो दिस जीरो इज गोइंग एज एन इनपुट टू दिस नैंड गेट। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट में गया, वन वन जीरो, क्यू बार वन है तो ये क्यू बार यहाँ पे हमारे इनपुट में जा रहा है, तो इस नैंड गेट में कौन सा इनपुट जा रहा है, वन वन वन, राइट, क्योंकि जे वन है, क्लॉक वन है, यहाँ पे के वन है, क्लॉक वन है, सो हेयर द इनपुट टू नैंड गेट इज वन वन, क्यू बार क्या था हमारा, वन वन था ना, ट्रिपल वन right, है ऊपर। so right, so triple one is going as an input to this NAND gate and double one zero is going as an input to NAND gate। now one 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 अगर आपके NAND gate में जा रहा है तो यार आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। एंड का उल्टा, राइट, एंड का उल्टा कर दो, एंड के आगे नॉट लगा दो, एंड का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो नैंड मिलता है। अगर वन 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 एंड में जा रहा है तो एंड गेट में वन 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 देता है आपको, वन इंटू वन इज वन, और उसको कॉम्प्लीमेंट करो तो मिलता है आपको जीरो। सो व्हाट आउटपुट यू गेट हियर इज जीरो, इसको याद रखो, दिमाग में रखो कि भाई यहाँ मेरे को जीरो मिल गया है। हियर व्हाट इनपुट इज गोइंग इज वन वन जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है क्योंकि ये नैंड है। सो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या आ गया, 1। If 0 and 1 is going as an input to SR latch, now this is SR latch, what output you get is Q is 1 and Q bar is 0। ये आपको याद हो जाना चाहिए। SR latch की अगर आप बात करो, कहाँ गया, कहाँ गया,
ओके क्या हाँ यार योर ये क्या आया था यहाँ पे, ये आपका 0 आया था या 1 आया था? ऊपर ये आया था, सर वन आया ऊपर था, ऊपर 0 आया 0 आया था। था, नीचे 1 आया था। तो ये 0 1 अगर इनपुट में जाएगा, योर क्यू विल बी 1 एंड योर क्यू बार सॉरी उल्टा। उल्टा हो जाएगा आपका। सर क्यू 0 हो जाएगा, क्यू बार 1 हो जाएगा। तो क्यू सेम ही नहीं आया। हमने पहले क्या अज्यूम किया था, क्यू 0 है ना? यस सर सर। Q1 क्यू 0 गया यहाँ पे, तो ये 1 1 0 नीचे, क्यू नीचे किया ना 0। तो यहाँ पे 1 आया ना, हाँ यहाँ पे बनाया। ऊपर 0 आया। हाँ हाँ तो हमारा क्यू बार 0 आएगा और क्यू 1 आएगा ना, अरे हाँ 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 हाँ। तो हाँ Q1 सर हो राइट। जाएगा, Q बार 0 होगा, क्योंकि एनी ऐसा ले वापस। इसमें कोई भी वो ले रहे हो आप, ठीक है। अब Q अगर 1 है, राइट, तो अगर उससे उल्टा हो गया, राइट, अब यहाँ पे 0 1 था, ये 1 0 हो जाएगा। अब ये जब 1 इनपुट में जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, तो जब से पहले यहाँ पे 0 1 था, तो ये 1 0 हो जाएगा। अगर ये 1 0 हो जाएगा तो ये वापस से 0 1 हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, whatever is the input यहाँ पे J और K प्रोवाइड कर रहे हो, आपको हर केस में एक बार Q 0 मिलेगा, उस टाइम पे Q बार 1 मिलेगा। दूसरी साइकिल जब चलेगी तो Q 0 से 1 हो जाएगा, Q बार 1 से 0 हो जाएगा। Q बार की बात नहीं करते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, वंस एक साइकिल खत्म हो गई आपका Q 0 हो जाएगा, दूसरी साइकिल खत्म हो गई आपका Q 1 होगा, वापस से एक साइकिल चली Q 0 हो जाएगा, वापस से एक साइकिल चल गई Q आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, Q विल बी 0 1 0 1। सिमिलरली Q बार क्या होता है, उसका उल्टा ही होता है। Q बार अगर ये 0 है तो 1, तो 1 के बाद 0 0 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद 1। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं टॉगलिंग। टॉगल करना मतलब 1 का 0 करना, 0 का 1 करना। इस कैरेक्टरिस्टिक्स वी यूज फॉर काउंटर पर्पस, राइट, उसके काफी एप्लीकेशन है टॉगल करने के लिए। So in short, what I can write is next state will be your complement of previous state। क्योंकि जैसे एक साइकिल में आपका Q 0 था, वेरी नेक्स्ट साइकिल में आपका वो Q बदल के 1 हो जाएगा, वेरी नेक्स्ट साइकिल में आपका Q बदल के 0 हो जाएगा। सो मतलब जो भी वैल्यू है उसकी नेक्स्ट स्टेट उसका कॉम्प्लीमेंट हो रही है। सो आई कैन राइट योर नेक्स्ट स्टेट, n+1 का मतलब हो गया नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस स्टेट, एन इज योर प्रेजेंट स्टेट। लेकिन मैं आगे की बात करूंगा तो ये आपका नेक्स्ट स्टेट है, ये प्रीवियस स्टेट है। समझ रहे हो ना बात को? नेक्स्ट प्रीवियस प्रेजेंट में कंफ्यूज मत हो जाना। सर ये एक बार वापस समझाइए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो आउटपुट आ रहा है ना, वो एक साइकिल चली तो 0 आया, वापस चली तो वो 1 हो गया, फिर वो 0 हो गया, 0 1 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका Qn है 0, ये आपका Qn+1 है, राइट, ये आपका Qn+2 है, ये आपका Qn+3 है। n+1 n+2 n+3 का मतलब ये हो गया उसके बाद का स्टेट, ठीक है। तो आई कैन राइट, ये आपका प्रीवियस। Qn, ये आपका Qn है, ये आपका Qn+1 है, ये आपका Qn+2 है, ये आपका Qn+3 है, ठीक है। सो आई कैन राइट Qn+1 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Qn बार। ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। सर ठीक से समझ में नहीं आया था। मतलब वो 0 का 1 हो जाता ना, Q और Q बार। ओके देखो, मुझे ये बताओ, ये देखो J1 है, क्लॉक 1 है, सिमिलरली K1 है, क्लॉक 1 है, ठीक है, यस सर। राइट। हमने अज्यूम क्या किया, Q इज 0। सबसे पहले कोई भी एक सिचुएशन अज्यूम करो, Q इज 0। अब यहाँ से 0, राइट, एज इन इनपुट जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1 1 0। हेलो, यस सर। 1 1 0 का आउटपुट क्या है आपका? 1। 1 1 0 का आउटपुट 1 आया, यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे कोई भी इनपुट अगर 1 है, राइट, वो आउटपुट आपका क्या आएगा?
नैंड में 1 1, ये 1 यहाँ पे गया, मानो यहाँ पे तो ये 1 है, ये यहाँ पे क्या था आपका 0 1, ये 0 था, 0 1 आपका आउटपुट में क्या आएगा? 1 सर, लेकिन तो ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। नहीं, नीचे 0 आएगा ना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना। यहाँ पे आपका वो क्यू तो बार क्या मिलेगा। आया? देखो आपको क्या करना है, यही 1 को वापस नहीं ले जाना है, ये जो आउटपुट आ गया उसको क्यू बार लिखना है, राइट। उसको कोई एक ही साइड से आपको सर्किट को विजुलाइज करना है। आप एट द सेम टाइम दोनों चीज को विजुलाइज नहीं कर सकते। मतलब ये आउटपुट गया, इसको यहाँ से ले गए, either you start visualizing the circuit from Q और Q bar, right? हम लोग एट द सेम टाइम दोनों इनपुट विजुलाइज नहीं कर सकते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है आप सबको, बट कोई एक पॉइंट से सर्किट को विजुलाइज करना स्टार्ट करोगे तभी समझ पाओगे। और एक्चुअल में अगर आप इसको सर्किट बना के देखोगे ना, तो भी यही आउटपुट आता है। मतलब जो ट्रूथ टेबल बनाया है वही आउटपुट आता है। मतलब देखो कहाँ पे थे हम लोग, वापस से कहाँ से स्टार्ट करूं, मुझे वो बताओ, कहाँ क्या चीज में गलती हो रही है वो मुझे बताओ, समझ कहाँ नहीं आ रहा है। 2 बार तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया? 1 1। यहाँ पे कैसे 1 आया? सर यहाँ पे 1 आएगा, फिर वो ऊपर बार में जाएगा ना, तो इसको कंफ्यूजन है कि क्यू बार 1 कैसे हुआ। उसको एन एंड वाला जो अपना आउटपुट है ना, वही वही 1 लग रहा है उसको क्यू बार के लिए, जो उल्टा है। फिर वो ऊपर इनपुट में जाएगा और फिर वहां से हम्म उसका आउटपुट अपन नीचे लेकर आएंगे ना, तो हम्म फिर वो नीचे आके अपने को 0 मिलेगा, तो 0 उसको वहां मिलेगा। मतलब उसको नीचे जो एन एंड डी में अपन डाल रहे हैं ना इनपुट 1, हाँ उसको लग रहा है कि वही क्यू बार में भी आ रहा है। सर वो तो अपन ऊपर के लिए इनपुट डाल रहे हैं ना, हाँ, ऊपर के लिए जाएगा ना यहाँ पे, फिर उसका आउटपुट यहाँ हमको क्यों? उसको हाँ नीचे सर, क्यू। समझ में आ गया। देखो मुझे एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब ये खुद विजुअलाइज करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। एक्चुअली बिफोर कंप्यूटर में भी ये मैंने पढ़ा, तो दिमाग में रख के चलना पड़ता है, या फिर पेन पेपर लेके बैठ के पड़ता है कि अच्छा ये 0 यहाँ पे गया, ये हो रहा है, ये आउटपुट यहाँ पे गया, ये हो रहा है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है, बट सेम थिंग एक्सप्लेनिंग में अगर आप देखोगे कि उसे विजुलाइज करना स्टार्ट करोगे, अच्छा ये निकल के यहाँ, और यहाँ पे ना ये मैं इमेज मैंने फोटो कॉपी गूगल से की है। यहाँ पे अगर नोट बोर्ड है तो बोर्ड पे समझाना काफी आसान रहता है। व्हेन यू विजुलाइज इट यू कैन अंडरस्टूड इट, आई एम प्रीटी श्योर समझ में आ जाएगा। ओके अब ट्रूथ टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है, एक्साइटेशन टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल है, ये 0 से लेके 1 से लेके पहले 5 तक का तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट केस में एक इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट इज हमें यहाँ क्यू एन बार मिलेगा। योर वॉट एवर इज द नेक्स्ट स्टेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। ये चीज सिंपल है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। आपका जो भी प्रेजेंट स्टेट है, उसके बाद अगला स्टेट जो होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थियरी। So if it is 0, in the next state it will be 1. In the very next state it will be 0. In the next state will be 1. So what I can write is your next state will be the complement of present state Qn bar, right? 1 1 1 combination के जिसको toggling बोलते हैं, right? Now once you make the truth table, you can make characteristics table. Characteristics table में क्या है? आपका present state, the value of j, value of k, and depending on these three value, what is the next state? ये आपका characteristics table। दोनों केस में ऐसा फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में characteristics is nothing but the value of next state depending on the value of present state, the value of j and value of k. If you have three variable, then possible 8 combination 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 assuming here that the clock value of clock is 1। यहाँ हर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्लॉक का वैल्यू हम 1 अज्यूम कर देते हैं। 0 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 0 का तो हमें पता ही है कि when the clock 0 your next state will be present state only। तो when j is 0 k is 0, when j is 0
k is 0, qn plus 1 क्या होगा आपका, qn ही होगा, qn का वैल्यू क्या है 0, so qn plus 1 will be 0. When j is 0, k is 1, j is 0, k is 1, qn plus 1 is 0, 0. j is 1, k is 0, j is 1, k is 0, qn plus 1 is 1. j is 1, k is 1, j is 1, k is 1, your next state will be toggle, मतलब qn का उल्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. What is the value of qn? Value of qn is 0, so the next state will be complement of qn, this is 1, so 1 1 में आपका 1 हो जाएगा. j is 0, k is 0, अगेन मेमोरी, सो qn का वैल्यू सेम का सेम रहेगा, 1 का 1 रहेगा. j is 0, 1 0 1 0 1, and j is 1, k is 1, j is 1, k is 1, your next state will be toggle. टॉगल मतलब qn जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, qn क्या है आपका 1, so complement will be 0. So if you know the truth table, you can make characteristics table. Now once you know the characteristics table, you can make excitations table. Next present state, next state, 4 possible combination 0 0 0 1 1 0 1 1. For these 4 possible combination, j and k का value q is 0, qn plus 1 is 0. ये possible कहाँ हो रहा है, तो पहले दो केस में हो रहा है, right? qn is 0, qn plus 1 is 0, qn is 0, qn plus 1 is 0. j is same for both the variable, so j is 0 and k is x. x इसलिए लिखा है क्योंकि k का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. सिमिलरली फॉर 0 1, 0 1 कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है, उसके बाद के दो में हो रहा है. दोनों के लिए j का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 0 और 1 है, सो j is 1, k is x. For 1 0, this is 1, this is 1, this is 0, and the last 1 and 0. इन दोनों के लिए k का वैल्यू फिक्स है 1, तो k का वैल्यू 1, j का वैल्यू x, एंड 1 1 1 1 इज ये रहा, ये 1 ये 1 और सेकेंड लास्ट 1 1. उन दोनों के लिए k का वैल्यू फिक्स है 0, तो k is 0 and j is x. So excitation table is here. All right, so yeah, this is the last theory which I wanted to discuss with you people. The last unit, 3 important theory: SR flip flop, SR latch, SR latch, SR flip flop, D flip flop, GK flip flop. सारे चीजों का ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम, सिंबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, इतना आपको आना चाहिए. देन द होल सिलेबस में से डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द वे यू आर आंसरिंग, वाइवा काफी आसान होगा. We'll start with very basic stuff, right? यूनिवर्सल सर्किट, आपको कोई भी सर्किट दूं आपको उसको नैंड से रिप्लेस करना या नॉर से रिप्लेस करना आना चाहिए. कोई भी आपको समेशन एम या कैपिटल एम करके दूं, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म आपको शॉर्ट करना आना चाहिए के मैप से यूज करके, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप. ओके, कोड कन्वर्टर आपका एक्सपेरिमेंट था, जो सारे एक्सपेरिमेंट है इसमें पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, एलईडी हो गया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली वैसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं आता तो आई मे आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म एलईडी, राइट? वो बेसिकली तो नहीं होगा. सो इन कंक्लूजन, the major important question is this flip flops and their truth table, characteristics table, excitations table, कोड कन्वर्टर सर्किट वो आपने एक्सपेरिमेंट में की थी, बाइनरी टू ग्रेड, ग्रेड टू बाइनरी, बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर, देन मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, विदाउट के मैप, और जो स्टार्टिंग में हमने सब चीज पढ़ी थी, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म रिलेटेड थिंग, इतना अगर आपको आना चाहिए, सो दैट्स इट. And probably this will be the last lecture, और most probably अगर next Friday को भी रखेंगे, next Friday को शायद से डेट है हमारा 30th, yes, तो है टीचिंग ही हमारा 30th को, तो लास्ट लेक्चर रखेंगे, अगर कुछ है तो we will discuss, otherwise that's it guys. हमारे पिक्चर अभी एंड होने वाली है, ठीक है? ओके, सो 1 to 10 एनरोलमेंट नंबर, अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दो.